Here is a lesson number 4, Chivi poem. Chivi nagged to keep on urging one to do something especially in an annoying way. Hanky, handkerchief, interrupt, interference. Make up mind, take decision. Parents and teachers always nag the children with do's and don'ts. Most of these imperatives are meaningless. They are pre-convinced and contradictory. The poem Chivi is an eye-opener to such a behavior. पेरेंट्स और टीचर जो हैं बच्चों को हमेशा कहते रहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं. सो Chivi is such a eye-opener behavior, such a eye-opener to such a behavior. Chivi is a short poem by Michael Rosen, which is focused on the unreasonable behavior and comments given by adults for the children. मतलब जो एडल्ट्स हैं हमेशा चिल्ड्रन को कमेंट करते रहते हैं, एडवाइस करते रहते हैं, इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं हर छोटी छोटी चीज़ों पर. सो what the adults would say, like pull your socks up, don't drag your feet. ऐसे पैर को घिसना नहीं है, सॉक्स को पुल अप करके रखना है. डोंट स्पीक व्हेन योर माउथ इज़ फुल ऑफ थिंग्स. मतलब जब हमारे मुंह में कुछ खाने की चीज़ें भरी हुई होती तब हमें कुछ कहना नहीं चाहिए. So in the concluding lines there is a questions which seems is a mismatch with the rest of the poem. That is, can you make your mind up about anything? It seems ridiculous as in the first place children are interfered in all aspects of life and then they are expected to take their own decision. और जो लास्ट में बिल्कुल रिडिकुलस होता है, मतलब खुद के डिसीजंस ले लो ऐसा बोलते हैं वो हमें जो हमारे एडल्ट्स होते हैं वो. सो लास्टली काफ़ी रिडिकुलस लगता है. द फर्स्ट प्लेस चिल्ड्रन आर इंटरफेयर्ड इन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. जब बच्चे होते हैं तब तो काफ़ी इंटरफेयर करते हैं और थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप अपना डिसीजन खुद लो, अब आप बड़े हो गए हो. नाउ हियर इज वर्किंग विद द पोएम टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स. When is a grown-up likely to say this? Don't talk with your mouth is full. Grown-up is likely to tell the children not to talk during meal. Means खाना खाते वक्त हमें बात नहीं करनी चाहिए. While their mouth is full. When are you likely to be told this? Say thank you. The children are likely to be reminded to say thank you when they receive a gift or a favor from someone. When do you think an adult would say this? अब एडल्ट ये सब कब कहते हैं? नो वन थिंक्स यू आर फ़नी. कोई भी ऐसा नहीं सोचता है कि तुम फ़नी हो. एडल्ट्स आर लाइकली टू टेल चिल्ड्रन नो वन थिंक्स यू आर फ़नी एंड द चिल्ड्रंस आर टू शाय. जब बच्चे जो होते हैं काफ़ी शर्मीले होते हैं या किसी स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए या किसी चीज़ के बारे में बोलने के लिए वो शाय फील करते हैं. The last two lines of the poem are not prohibitions or instructions. What is the adult now asking the child to do? Do you think the poet is suggesting that this is unreasonable? Why? In the last two lines, adult is now asking the child to make up her own mind and take decisions by himself, herself, to be independent, which is unreasonable because till that time the adults were not allowing the child to take any decisions on its own. And they were always taking decisions for the child, but now they are asking her to take own decisions, which is surely unreasonable. मतलब जब हम लास्ट लाइन में वो बोलते हैं कि एडल्ट्स जब बोलते हैं बच्चे को कि अब आपको खुद का डिसीजन लेना चाहिए, लेना सीख लो, इंडिपेंडेंट हो जाओ. सो अनरीजनेबल बिकॉज टिल दैट टाइम द एडल्ट्स वर नॉट अलाउिंग द चाइल्ड टू टेक एनी डिसीजंस. क्योंकि जब छोटे होते हैं तब तो बिल्कुल भी उसे डिसीजन लेने नहीं देते, उसके मन की करने नहीं देते. और थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है कि अब तुम खुद सोचो और खुद अपना डिसाइड करो. वाई डू थिंक ग्रोन अप से the kind of things mentioned in the poem? Is it important that they teach children good manners and how to behave in public? The grown-ups say such kind of things to their children in order to teach them good manners. They want their children to, मतलब जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को सिखाया जाता है गुड मैनर्स और वो बच्चों को रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाना चाहते हैं, जैसे कि गुड बिहेव करे पब्लिकली. येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टीच द चिल्ड्रन ऑल दिस थिंग्स सो दैट दे लर्न गुड मैनर्स. और ये सारी चीज़ें सिखाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उससे गुड मैनर्स भी उसमें आए. नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी एट होम एंड विद देयर एल्डर्स. घर में कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, अपने बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है. एंड यंगस्टर्स टू, मतलब बच्चों छोटे जो हमसे छोटे होते हैं उनसे भी कैसे बिहेव करना चाहिए.
आर एल्डर्स आर टीचर्स एंड वी कैन लर्न लॉट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. जो हमारे बड़े होते हैं वो हमारे टीचर होते हैं और उनके एक्सपीरियंस से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. If you had to make some rules for grown-ups to follow, what would you say? Make it list 5 such rules. Arrange the lines as in poem. Now, don't dictate that. Impose your rules. Your ways and thinking is different from ours, and so are the times. Don't talk over the phone while eating. Please spend some time with us. Don't abuse anyone. मतलब ज़्यादा फ़ोन पे बातें नहीं करना है. जब खाना खा रहे हो तब ज़्यादा फ़ोन पर मतलब बात नहीं करना है. प्लीज़ स्पेंड सम टाइम विद अस. हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करो. डोंट अब्यूज़ एनीवन. किसी को भी कुछ गंदा नहीं बोलना है. रिस्पेक्ट द एल्डर्स एंड यंगस्टर्स टू. हमारे बड़ों को और हमसे छोटों को भी रिस्पेक्ट देनी है. टाइम विल बी अलाउड फॉर प्लेइंग. मतलब एक आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा जिसमें कि आपको खेलना है. कीप द नेबरिंग क्लीन. हमारे आसपास की जो एरिया है, जो जगह है, उसे क्लीन रखना है. डोंट स्मोक और स्पिट. स्मोक नहीं करना है, स्पिट नहीं करना है. अलाउ टाइम फॉर वॉचिंग टीवी. टीवी देखने के लिए भी एक टाइम सेट होता है. नो फिजिकल पनिशमेंट. कोई भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए. सो हियर इज अ लेसन नंबर पोएट्री लेसन चीवी इज फिनिश्ड. I hope this video will help you to learn at home. Now all this lesson number 1, 2, 3 and this lesson number 4 revision, this revision is taken for your PAT 5 test, so you could learn easily at your home. So I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned to learn next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.